بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں محمد اسامہ غازی اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز آج۔ مذاکرات ختم، طالبان کو انہی کی زبان میں جواب دینا شروع کر دیا۔ آپریشن وقتی ہے یا مستقل، قوم فوج کے ساتھ ہے، نصر من اللہ و فتح قریب۔ طالبان کی مسلسل پھیلتی انتہا پسندی سے وادی کیلاش والے بھی محفوظ نہیں، سپریم کورٹ کو نوٹس دینا پڑ گیا۔ بندوق کے زور پر نظریات ٹھونسنے والوں سے کچھ لوگوں کی ہمدردی نہیں جا رہی۔ طالبان کے ہاں نظریاتی اختلاف کی چھوٹی سے چھوٹی سزا موت ہے۔ مذہبی اسکالر طیبہ خانم کو شدت پسندوں کی دھمکیوں کے سبب ملک چھوڑنا پڑ گیا۔ طالبان کے ساتھ مذاکراتی عمل کے دوران خوف کا راج رہا، کراچی میں تھانوں کے گرد خندقیں کھودنا پڑ گئیں۔ کیا تحریک انصاف اب بھی آپریشن کے خلاف ہے؟ 23 FCA اہلکاروں کو شہید کرنے والے طالبان کمانڈر خالد خراسانی نے میر علی آپریشن کا بدلہ لینے کی دھمکی دے دی۔ کراچی شدید خطرے میں ہے۔ بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب رات ٹھیک 12 بجے پاک فضائیہ کے طیاروں نے شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی اور خیبر جنسی کے علاقے باڑہ میں 3 مقامات کو نشانہ بنایا۔ پاک فضائیہ کے لڑاکا طیاروں کی طرف سے کم و بیش 40 منٹ تک کارروائی جاری رکھی گئی، جس میں 42 طالبان مارے گئے۔ مارے جانے والوں میں طالبان کے ازبک، ترکمانی اور تاجک کمانڈر بھی شامل ہیں۔ اس کارروائی کے بعد کہیں سناٹا ہے اور کہیں احتجاج۔ عسکری حکام کے مطابق اس کارروائی میں 13 فروری کو پشاور سینما پر ہونے والے حملے اور 18 فروری کو پشاور میں ہی میجر جہانزیب پر حملہ کرنے والے شدت پسندوں کو نشانہ بنایا گیا۔ اس سے قبل بھی 19 جنوری کو جب بنو اور 20 جنوری کو راولپنڈی میں فوجی دستوں کو نشانہ بنایا گیا تو اسی شب پاک فضائیہ کے جنگی طیاروں نے طالبان کے ٹھکانوں پر بمباری کی تھی۔ آج اس آپریشن کے حوالے سے وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے طویل نیوز کانفرنس کی۔ ان کا کہنا تھا کہ جب فوج کو نشانہ بنایا جائے گا اس کا جواب دیا جائے گا اور فوج سے یہ اختیار کوئی نہیں لے سکتا۔ وزیر داخلہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم امن چاہتے ہیں، مگر قومی اسمبلی میں وزیر اعظم نے اپنے آخری خطاب میں 2 ٹوک کہہ دیا تھا کہ مذاکرات اور شدت پسندانہ کارروائیاں ایک ساتھ نہیں چل سکتی۔ FCA کے 23 اہلکاروں کی گردن زنی کے واقعے کے بعد وزیر اعظم نے حکومتی مذاکراتی کمیٹی کو طالبان کی مذاکراتی کمیٹی سے یہ کہہ کر ملاقات کرنے سے روک دیا تھا کہ یہ ملاقات ذبح کیے جانے والے FCA کے 23 اہلکاروں کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ پہلے یہ کمیٹی کے ساتھ ہوا، پھر عسکری قیادت کو بلا کر وزیر اعظم نے یہ فیصلہ کیا کہ اس ماحول میں ڈائیلاگ کو آگے بڑھانا یہ زیادتی ہوگی۔ غیر ملکی نشریاتی ادارے خبر دیتے ہیں کہ 23 اہلکاروں کی شہادت کے بعد وزیر اعظم نواز شریف نے 3 دن تک کارروائی سے روکے رکھا۔ تاہم طالبان کی طرف سے مثبت پیش رفت نہ ہونے کے بعد وزیر اعظم نے بالآخر کل شب پاک فوج کو طالبان کے خلاف کارروائی کرنے کی اجازت دے دی۔ مگر جماعت اسلامی کے امیر سید منور حسن جو طالبان کے خلاف طاقت کا استعمال نہ کرنے کی حمایت کرنے والوں میں شمار ہوتے ہیں، آج سوال کر رہے تھے کہ یہ آپریشن کس کے حکم پر کیا جا رہا ہے۔ شمالی وزیرستان میں جو کارروائی ہوئی ہے کہ اس بمباری کو فوراً بند کیا جائے اور اگر ملٹری آپریشن کا فیصلہ ہو چکا ہے تو اس کا اعلان کیا جائے، بجائے اس کے کہ مخفی طور پر اس کو کیا جائے۔ سید منور حسن کے اس سوال کا وزیر داخلہ نے 2 ٹوک جواب دیا ہے۔ ایک ڈسکشن ہوئی، سیر حاصل ڈسکشن ہوئی اور پھر یہ فیصلہ ہوا کہ نہیں، مزید کوشش کرنی چاہیے۔ حکومت اور عسکری قیادت میں بڑی ریگولر بڑی باقاعدگی سے مشاورت ہوتی ہے۔ چودھری نثار علی خان نے یہ بھی واضح کر دیا کہ پاک فوج اور منتخب جمہوری حکومت مکمل طور پر ہم آہنگ ہیں اور تمام فیصلے باہمی مشاورت سے کیے جا رہے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ نے اپنی اس نیوز کانفرنس میں دراصل طالبان سے متعلق اپنی پالیسی کھول کر بیان کر دی ہے، اور یہ پالیسی سادہ لفظوں میں یہ ہے کہ حکومت مذاکرات کے ذریعے امن چاہتی ہے، لیکن طالبان کی طرف سے پرتشدد کارروائیاں برداشت نہیں کی جا سکتی، یعنی مذاکرات اور تشدد ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ طالبان کی طرف سے اپنی کارروائیوں کا یہ جواز دیا گیا تھا کہ حکومت ان کے کارکنوں کو جعلی مقابلوں میں قتل کر رہی ہے، لہٰذا جواباً یہ کارروائیاں کی گئی ہیں۔ طالبان کے ہمدرد اس جواز کو سچ سمجھ کر اس پروپیگنڈے کا حصہ بنے رہے۔ وزیر داخلہ نے اس موقف کی نفی کرتے ہوئے 2 ٹوک الفاظ میں بتایا کہ جب سے APC میں مذاکرات کرنے کا فیصلہ کیا گیا، اس کے بعد سے حکومت نے طالبان کے خلاف مکمل جنگ بندی جاری رکھی ہے۔ حکومت نے ہر قسم کا ملٹری آپریشن سپٹمبر سے لے کر آج تک مکمل طور پہ بند کیا ہوا ہے۔
अपनी इस न्यूज कॉन्फ्रेंस में वफाकी वज़ीर दाखिला ने यह तासुर दिया कि एक ग्रुप मुज़ाकरात को सैबोटाज कर रहा है, लिहाजा जब तक दूसरी तरफ से मुकम्मल जंगबंदी नहीं की जाती मुज़ाकरात नहीं हो सकेंगे। बज़ाहिर हुकूमत का मौक़िफ़ बरहक है और यूं लग रहा है कि आज की कार्रवाई दरअसल तालिबान के एक ग्रुप को सबक सिखाने के लिए थी और जो ही तालिबान आइंदा खुदकुश हमलों और दीगर दहशतगर्दी की वारदातों से तायब होंगे, मुज़ाकरात शुरू कर दिए जाएंगे। गोया इस ऑपरेशन की हैसियत आर्जी नौयत की होगी, लेकिन जमीनी हकायक इसके बिल्कुल बरक्स हैं। तालिबान इस कार्रवाई के बाद हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठेंगे, बल्कि भरपूर जवाब देंगे। इस जवाब का जवाबुल जवाब एक और हुकूमती कार्रवाई की सूरत में सामने आएगा। यूं ये सिलसिला थमेगा नहीं तावक्ते के एक फरीक मैदान ना छोड़ दे। तालिबान का तो पता नहीं, हमें अपना पता है कि हमारे पास तालिबान को शिकस्त देने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं। लिहाजा ये जंग है या ऑपरेशन, आर्जी है या मुस्तकिल, कौम हर दो सूरतों में पाक फौज के पीछे खड़ी है। सवाल सादा सा है कि क्या अब भी किसी को उम्मीद है कि तालिबान बम और बंदूक छोड़कर मेज पर आएंगे, बात करेंगे, अमन का हल देंगे? ये जानने की कोशिश करते हैं हुकूमती राब्ता कार कमेटी का अहम तरीन रुकन जनाब रुस्तम शाह मोमिन से। हुकूमती कमेटी के रुकन रुस्तम शाह मोमिन साहब हमारे साथ हैं। रुस्तम शाह साहब, वज़ीर दाखिला कहते हैं कि मुज़ाकरात को आगे बढ़ाना शोहदा के साथ ज्यादती होती। वज़ीर आज़म ने 3 दिन तक ऑपरेशन रोके रखा, उसके बाद फौज को इजाज़त दी। क्या अब यही हल है, इस तरह से बमबारी की जाए, यही इलाज है? देखिए, मैं जो मिलिट्री ऑपरेशन है उस पर तो मैं कोई तबसरा नहीं करूँगा, लेकिन बात तो आगे जा रही थी और दस्तूर की बात उन्होंने मान ली थी और सिस्टम की बात को न छेड़ना भी उन्होंने मान लिया था। आखिर में उन्होंने सीज़ फायर पर भी वो राज़ी हो गए थे और सिर्फ ये शर्त लगाई थी कि हुकूमत की तरफ से भी ऐसी कोई कार्रवाई हो कि मावराए अदालत हलाकतें न हों। तो उसूलन वो बात एक हद तक सही इसलिए थी कि मावराए अदालत कत्ल को कोई भी जायज़ नहीं समझता, चाहे कोई सिविल हो, फ़ौजी हो, कोई पॉलिटिशियन हो, कोई और हो। लेकिन जो मोहम्मद एजेंसी का वाक़या हुआ उससे सारे प्रोसेस को बड़ा सेटबैक मिला। उसकी वजह से एक ग्लूम तारी हो गया, उसकी वजह से कोई तारीकी आ गई और शकूक बढ़ने लगे और हुकूमत पर दबाव बढ़ने लगा। असल में उसामा साहब, ये बात ये है कि ट्रूप्स का जो मोराल है उसका भी ख्याल रखना पड़ता है और वो भी हुकूमत की ज़िम्मेवारी है। तो ये जो इंसिडेंट हुआ मालूम ऐसे होता है कि टॉक्स को सैबोटेज करने के लिए किया गया। अब ये वाक़या जो है वो 23 FC के जो जवान हैं उनको कत्ल करने का, शहीद करने का 10 दिन पहले हुआ है, महीना पहले हुआ है, 6 महीने पहले हुआ है, ये मालूम नहीं। लेकिन बयान उस वक्त दिया गया जब उनको मालूम था कि जब मैं ये बयान दूंगा तो ये पीस प्रोसेस जो है वो सस्पेंड हो जाएगा, वो फ़िलहाल ख़त्म हो जाएगा। तो वही हुआ, उन्होंने कामयाबी से उसको डिरेल कर दिया और उन्होंने एक रास्ता बना दिया मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च करने का, जो कि इस वक्त हुकूमत लॉन्च कर चुकी है। अब ये दूसरा मौजू है कि इसका क्या फ़ायदा होगा, कितना होगा, आया दूररस फ़वाइद होंगे या शॉर्ट टर्म गेन्स होंगे, ये एक दूसरा मौजू है। अब मुज़ाकरात ख़त्म समझे जाएं क्योंकि तालिबान ने कहा है वो भी जवाब देंगे और वज़ीर दाखिला कह चुके हैं फ़ौज को दिफा का हक हासिल है, ये छीना नहीं जा सकता। मेरे ख्याल में इस माहौल में मुज़ाकरात को जारी रखना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। आपने फौजी ऑपरेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, आप इसे फौजी ऑपरेशन कहेंगे, महदूद कार्रवाई कहेंगे, बदला कहेंगे, क्या कहेंगे जो आज हुआ? देखिए, नॉमेनक्लेचर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप उनको टारगेटेड ऑपरेशन कर दें या प्रेसिजन स्ट्राइक करार दें या ऑपरेशन करार दें,
اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ پاکستانی حکومت اب ان کے خلاف کارروائی انہوں نے شروع کر دی ہے۔ خیبر میں کارروائی ہوئی ہے، وہاں پہ نارتھ وزیرستان میں مختلف جگہوں پہ کارروائی ہوئی ہے، اور لگتا یہ ہے کہ یہ کارروائیاں فی الحال جاری رہیں گی، اور اس کے نتیجے میں جو ری ایکشن ہوگا وہ تو ہم سب کو معلوم ہے، وہ بھی وہاں سے جاری رہے گا۔ تو جب تک یہ دونوں طرف سے یہ کارروائیاں ہوتی رہیں گی تو اس ماحول میں بات چیت نہیں ہو سکتی۔ ایک امکان یہ ہے کہ کچھ دنوں کے بعد جب کچھ ماحول میں کچھ گرمی کم ہو جائے، کچھ ٹھنڈک آ جائے، کچھ ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش ہونے لگے، نقصانات بھی بہت ہو جائیں گے، کیونکہ اب آئی ڈی پیز وہاں سے روانہ ہو چکے ہیں نارتھ وزیرستان سے، جو کہ ایک انسانی المیہ ہو سکتا ہے، کتنی لاکھوں کی تعداد میں لوگ اگر وہاں گھر بار چھوڑ کے باہر جا رہے ہوں تو یہ بھی ایک سانحہ ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد 10 دن کے بعد 15 دن کے بعد ہو سکتا ہے کہ اس معاملے کو دوبارہ اٹھایا جائے اور مذاکرات کو ایک اور چانس دیا جائے، لیکن اس صورت میں بہت جلد ایک معاہدے کی طرف جانا ہوگا۔ یہ جو لوگ آنا جانا اور ٹیلی فون پہ باتیں کرنا، اس سے بات نہیں ہوگی۔ جو مذاکرات کرنے والے لوگ ہیں، ہم کو وہیں پہ رہنا ہوگا اور وہیں پہ ان سے روز 2 3 4 دن کی ملاقاتیں ہوں گی، اور ان کے بعد کوئی معاہدہ ہوگا تاکہ اس کا کوئی حل تلاش کیا جا سکے اور جو ایشوز ہیں ان پہ بحث کی جا سکے۔ لیکن وہ بھی ایک امکان ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہو جائے، کیونکہ جب تک یہ ماحول رہے گا میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی سازگار ماحول ہے بات چیت کو شروع کرنے کا یا اس کو آگے بڑھانے کا۔ ابھی جو مذاکرات کا ماحول تباہ ہوا ہے، اس کا قصوروار کون ہے؟ کہ جو محمد ایجنسی کا واقعہ ہوا اس کے بعد تو مذاکرات جاری رکھنا بڑا مشکل ہو گیا حکومت کے لیے، کیونکہ دباؤ بہت بڑھ گیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ محمد ایجنسی کا جو واقعہ ہے یا اس کا جو اعلان ہے یا اپنی ذمہ داری ایکسیپٹ کرنا ہے، یہ سب کچھ مذاکرات کو ڈیریل کرنے کے لیے اور سیبوٹیج کرنے کے لیے کیا گیا۔ بہت سے لوگوں کا پہلے خیال تھا کہ مذاکرات ہر صورت میں ناکام ہوں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ بلاول بھٹو زرداری بھی یہ کہتے رہے کہ یہ تو طالبان سے مذاکرات کے لیے طالبان کو بھیجا جا رہا ہے، اس طرح کے اعتراضات بھی اٹھائے گئے، آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، اصل میں اعتماد کی اتنی کمی تھی، اعتماد کا اتنا فقدان تھا، نقصان دونوں طرف اتنا ہو چکا تھا، 16 لاکھ لوگ آئی ڈی پیز بن چکے تھے، وہاں پہ املاک کو، انفراسٹرکچر کو ختم کر دیا گیا تھا، فوج کا نقصان ہوا تھا، پولیس کا ہوا تھا، عام سیویلین کا ہوا تھا، دونوں طرف سے، کہ کوئی ہمیں رستہ قوم کو نظر نہیں آ رہا تھا اور سٹیٹس کو جاری رہتا۔ تو یہ پرائم منسٹر صاحب نے ایک بڑا زبردست اور بڑا اخلاص کے ساتھ، کمٹمنٹ کے ساتھ ایک انیشیٹو لانچ کیا، جس کی میں سمجھتا ہوں کہ قدر کرنی چاہیے۔ وہ امن کا راستہ تلاش کرنا چاہتے تھے، بدقسمتی سے محمد انسیڈنٹ کے محمد میں جو المیہ ہوا اس کی وجہ سے سارا پروسیس فار دا ٹائم بینگ ڈیریل ہو گیا۔ اب آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ بہت بہت شکریہ رستم شاہ مومن صاحب، بہت اہم رکن حکومتی کمیٹی کے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ فی الحال مذاکرات کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا، کیونکہ اب جب بھی دہشت گردی کی کوئی کارروائی ہوگی تو فوج اس کا بھرپور جواب دے گی۔ نیوز آر میں ملتے ہیں بریک کے بعد۔ طالبان کے ہاں نظریاتی اختلاف کی چھوٹی سے چھوٹی سزا موت ہے۔ مذہبی اسکالر طیبہ خانم کو شدت پسندوں کی دھمکیوں کے سبب ملک چھوڑنا پڑ گیا۔ ہمارے اسلاف کے کردار یہ ثابت کرتے ہیں کہ اسلام تلوار کے ذریعے نہیں پھیلا۔ قرآن کا فیصلہ ہے کہ لا اکراہ فی الدین، یعنی دین میں کوئی جبر نہیں۔ قرآن کا حکم ہے کہ لکم دینکم ولی دین، یعنی تمہارا دین تمہارے لیے اور میرا دین میرے لیے۔ مگر اب نئی رسم چل نکلی ہے کہ اسلام انسانوں کی کھیتیوں میں بندوق کی نوک پر بویا جائے۔ وادی کیلاش ایک قدیم تہذیب ہے، پاکستان کا حصہ، اور پاکستان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ماننے والوں کی سرزمین ہے۔ دین اسلام کے نئے تشریح کاروں نے وادی کیلاش کے واسیوں کو وہ حکم دیا ہے جو اللہ نے دیا، نہ اس کے رسول نے۔ حکم ہے کہ اسلام قبول کر لو ورنہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ طالبان کی مسلسل پھیلتی ہوئی شدت پسندی کا سپریم کورٹ نے نوٹس لیا ہے اور خیبر پختونخوا حکومت کو وادی کیلاش کے شہریوں کو سیکورٹی فراہم کر کے 1 ہفتے میں کیے گئے انتظامات کی رپورٹ دینے کا حکم دیا ہے۔
तालिबान की दीदा दिलेरियां, इंतहा पसंदियां इस नहज पर हैं कि मुज़ाकरात की आड़ में कत्ल, इस्लाम की आड़ में कत्ल, नजरियात की आड़ में कत्ल, पाक फौज भी वाजिबुल कत्ल, गैर मुस्लिम भी वाजिबुल कत्ल। इसके बावजूद तालिबान के हमदर्दों की हमदर्दियां नहीं जा रही। कौम को तालिबान के इशू पर तकसीम करने की कोशिशें जारी हैं। एक तरफ दाएं तरफ वाले हैं मगर इस बार कलील, दूसरी तरफ बाएं तरफ वाले हैं जो हक पर हैं मगर तादाद में कसीर। सवाल है कि अक्सरियत की सुनी जाएगी या कलील गिरोह की। हमारे साथ हैं नामवर कानूनदान, सुप्रीम कोर्ट बार की साबिक सदर मोहतरमा आसमा जहांगीर। उनसे पूछते हैं, आसमा साहिबा, ये जो अब सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो नोटिस लिया है इस मामले का, आपको लगता है इससे मामला हल हो सकेगा? देखिए, मामला उससे तो नहीं मगर बड़ा अच्छा किया है कि उन्होंने ये नोटिस लिया है। मैं समझती हूँ इस है जैसे बार बार कहा जाता है कि आप एक जिहाद इंडस्ट्री को ख़त्म तो कर सकते हैं मगर लोगों की ज़हनियत कैसे बदलेंगे, और बदलने के लिए ये ज़रूरी है कि हमारी सियासी पार्टियां और हमारे ओपिनियन मेकर्स एक बात पे तो पूरी तरीके से खड़े हो जाएं कि अगर कोई गैर मुस्लिम है इस मुल्क में तो उसका भी हक है रहने को। अगर आप नरम मुसलमान हैं तो आपका भी हक है रहने को, अगर आप कट्टर मुसलमान हैं तो आपका भी हक रहने को। मगर ये नहीं आप अलाउ कर सकते कि जो लोग मंशियात से पैसे कमा के जिहाद के नाम पे लोगों को मारते हैं, लोगों के बच्चों को पकड़ के किडनैप करते हैं और उससे लेते हैं पैसे और तवान लेते हैं, जो लोग लोगों की खून खराबा करते हैं, आप कैसे उनको इस्लाम का बानी मान लें? वो उनका क्या ताल्लुक है? किसी मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है। ये फरमाइएगा कि अब सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया, उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत इक़दामात करे इन लोगों को महफूज बनाने के लिए। जवाब ये आया कि तो अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं। आपको लगता है हुकूमत कुछ कर सकेगी इन लोगों को महफूज बनाने के लिए? देखें, हुकूमत को करना तो चाहिए, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, ये सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट नोटिस तो ले सकती है, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन दे सकती है, मगर सुप्रीम कोर्ट खुद जाके नहीं कर सकती। और खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके ऊपर खुद नोटिस लेती, कुछ ना कुछ करती। मैं समझती हूँ कि इस वक्त जिस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट ने एक साइडेड ओपिनियन रखी है और एक साइडेड पॉलिसी रखी है, वो शायद ये नहीं समझते कि इस मुल्क में और उस प्रोविंस में और भी लोग रहते हैं जिनका और नजरिया है, सिवाय उसके कि वो तालिबान के बैंड वैगन्स हैं, वो तालिबान के चेयर लीडर्स हैं, वो तालिबान को सिर्फ प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, मगर वो ये नहीं समझते कि किसी पाकिस्तान की ना फौज ने या शहरी ने उनके ऊपर हमला किया, उन्होंने हमारी टेरिटरी को लिया, हमारी सरहदों के ऊपर कब्जा किया, हमारे लोगों को मारा, तो हमें हक बनता है कि हम अपने आप को प्रोटेक्ट तो कम से कम करें। वो तो चाहते हैं कि हम प्रोटेक्ट भी ना करें। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस ख्याल के हामी नहीं है। मुनव्वर हसन साहब ने आज फिर कहा कि अगर जमहूरियत काम ना कर सके तो आमरीयत उसका जवाब नहीं है। मुज़ाकरात नाकाम हो तो फिर भी मुज़ाकरात ही किए जाएं, ऑपरेशन हल नहीं है। नहीं, देखें उसामा, मुज़ाकरात भी काउंटर टेररिज्म के अंदर आते हैं। मैं मुज़ाकरात के खिलाफ नहीं हूँ, मगर मुज़ाकरात को मजाक ना बनाया जाए। और दूसरा ये है कि आपकी सरहदें जो हैं महफूज नहीं हैं। आपके एक मुल्क का हिस्सा उन लोगों ने ले लिया है जो गैर पाकिस्तानी हैं, जो जिहाद इंडस्ट्री को बनाते बनाते मंशियात से पैसे लेते हैं और बच्चों को किडनैप करके पैसे लेते हैं, लोगों को मारते हैं। आपको पहले जैसे कहते हैं कैप्चर करनी है अपनी टेरिटरी को, फिर होल्ड करना है, फिर उसको सस्टेन करना है। ये बात नहीं है कि अगर उन्होंने फौजियों को मारा तो आप जाके उनके साथ बदला ले रहे हैं। ये बदलों की बात नहीं होती है, ये अपने मुल्क की दफा की बात है। जो डायरेक्शन है वो मुल्क की दफा के लिए डायरेक्शन होना चाहिए, लोगों की दफा के लिए डायरेक्शन। सही। आखिरी सवाल, आपको क्या लगता है किसकी सुनी जाएगी? अब भी कुछ लोग हमदर्द हैं तालिबान के, उनकी सुनी जाएगी या जो मुखालिफ हैं उनकी? देखिए, जो लोग हमदर्द हैं तालिबान के तो वो जाके फिर नॉर्थ वजीरिस्तान में रह लें। उनको किसने रोका है? वो जाएं, वहां पर रहें, अपने प्लॉट वहां पे लें, कॉर्नर प्लॉट लें, अपने फार्म हाउस वहां बनाएं, अपने बच्चे और बीवियों को वहां जाके रखें, तो फिर तो मानेंगे हम इस बात को। वो सिर्फ उनकी दफा इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी सियासत को हेल्प करती है।
वरना उनका अपना रहन सहन देख लें, वो जाके वहां बैठ सकते हैं। ये मुनाफिकत को छोड़ा जाए, इस मुनाफिकत को बंद किया जाए। मुल्क के बच्चे शहीद हो रहे हैं, मुल्क की फौजें शहीद हो रही हैं, मुल्क के पुलिस ऑफिसर शहीद हो रहे हैं। यहाँ पे मुल्क की अकलियतें जो है वो अपनी जान हथेली में लेके बैठी हैं। कोई मजाक है ये? बहुत शुक्रिया आसमा जंगी साहबा, सीनियर कानून। जिस तरह कह रही थी कि मुज़ाकरात की हामी है लेकिन मजाक नहीं होना चाहिए, मुनाफिकत नहीं होनी चाहिए। तालिबान के हाँ नजरियाती इख्तलाफ की छोटी सी छोटी सजा मौत है। ख्याल ये है कि जो वो कहते हैं शरीयत सिर्फ उसी का नाम है, बंदूक उनके हाथ में है और उस खुद साख्ता शरीयत का निफाज मकसद, और इख्तिलाफ राय रखने वाले उनके निशाने पर हैं। शिद्दत पसंदों की धमकियों की वजह से 2 बड़े मजहबी स्कॉलर बहुत अरसे से बैरून मुल्क जा चुके हैं। अब मारूफ मजहबी स्कॉलर खानम तैयबा बुखारी को भी धमकियों की वजह से मुल्क छोड़ना पड़ा है। उन्होंने बैरून मुल्क जाने का फैसला किन हालात में किया है, उन्हीं से जानते हैं। मोहतरमा, ये बताइए कि क्यों आपको मुल्क छोड़ना पड़ा तैयबा खानम साहिबा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसामा, बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे दर्द को महसूस किया। यूं मालूम पड़ता है कि ऐवान बाला में जलवा अफरोज नशा इक़्तिदार में मस्त हैवानी ख्वाहिशात की अमवाज बलाखेज के हाथों बेबस हुक्मरानों की समाअतें इतनी संगीन हो चुकी हैं कि हम मजलूम अवाम की आवाज सदा बसहरा होकर रह गई है। इन बेहिस हुक्मरानों की हवाओ हवस में डूबी हुई निगाहें मुशाहदा हक़ाइक़ की सलाहियत खो चुकी हैं। मैंने बारहा बताया, मुझे इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स आती रही, लेटर्स आते रहे, धमकियां आती रही, लेकिन किया ये कि जो मेरे पहले घर पे सिक्योरिटी थी उसको भी विथड्रॉ कर लिया। और मुल्तान में मेरी गाड़ी पे हमला हुआ, उससे पहले गुज़श्ता सालों में 2 हमले हुए थे और उसकी गाड़ी हमलावर गाड़ी की तफसील हमने पूरी बताई, उसका नंबर बताया, FIR कटी। इसके बावजूद किसी ने कोई अमली इक़दाम नहीं किया। और कोई महीना पहले, तकरीबन 25 रोज पहले, राना सनाउल्लाह ने लाइव प्रोग्राम में कहा कि आज ही आपकी सिक्योरिटी आपको लौटाते हैं। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आती रही कि सख्त खतरे की जद पे है आपका घर, लेकिन इसके बावजूद किसी ने मुझे कोई सिक्योरिटी नहीं दी और पहली सिक्योरिटी विथड्रॉ कर ली गई। अब सूरत हाल बतदरीज इतनी गंभीर हो गई कि क्या अर्ज करूं, जिसकी चोटी पे बसाया था कबीला मैंने, जलजले जाग पड़े हैं उसी को हिसार के बीच। तो मुझे वतन छोड़ना पड़ा, मगर मेरा ये अज़्म मुसम्मम है कि मैं पाकिस्तान में जरूर आऊंगी जैसे भी हालात होंगे। लेकिन ये बता दूं कि जिम्मेदार हुकूमत पाकिस्तान होगी। मेरा घर इस वक्त शदीद खतरे की जद पे है। 80 साल मेरी वालिदा हैं और उनकी मेरे बच्चों के साथ जज्बाती वाबस्तगी का ये आलम है कि अगर इत्तला में लाए बगैर लम्हे भर के लिए कोई बच्चा उनकी निगाह से ओझल हो जाए तो वो इतनी बेचैन होती हैं कि उनको संभालना दुश्वार हो जाता है इन हालात में। और फिर मैं ये बताइए कि में रहना चाहती हूँ। जी ये बताइए, वज़ीर दाखिला चौधरी निसार तो आज ही कह रहे थे कि इस्लामाबाद बड़ा महफूज है और फिर भी आपको क्यों नहीं सिक्योरिटी फराहम की जा सकती? उनके हाथ में वजारत दाखिला का अहम कलमदान है। वो जो चाहे बयान जारी कर सकते हैं, जो उनका दिल चाहे वो कह सकते हैं। उनकी गैर जिम्मेदारी और बेहिसी का ये आलम है कि मुझे वहाँ से इस्लामाबाद छोड़ना पड़ा, जबकि उनके सारे स्टाफ को उन्हें खुद मालूम है, वो सारे SMS, वो सारे लेटर्स, वो सारी चीजें उनके पास मौजूद हैं, जो धमकियां मुझे मिलती रही। और एक खातून होने के नाते से अब जो वल्गर और जो नाजेबा और जो आवारा जबान इस्तेमाल मेरे लिए की गई थी, उसकी वजह से मैंने दरअसल पाकिस्तान छोड़ा। मौत की धमकियों से मैंने पाकिस्तान नहीं छोड़ा। मुझे ये था कि एक खातून होने के नाते से मेरी इज्जत महफूज रहनी चाहिए। जो धमकियां आ रही थी तो मैंने पाकिस्तान को छोड़ा, लेकिन उनकी गैरत और उनकी हमीयत बेदार नहीं हुई कि एक खातून होने के नाते से ही वो मुझे कोई सिक्योरिटी फराहम कर दें। उनके रिप्रेजेंटेटिव चैनल्स पे बैठ के कहते हैं कि ये स्कॉलर्स तो अपनी नुमाइश के लिए गार्ड्स अपने हमरा रखते हैं, जबकि सारे शवाहिद उनके पास मौजूद है। उनकी मिनिस्ट्री मुझे लेटर्स भेज रही है कि आप शदीद खतरे की जद पे हैं और टॉप 100 की हिट लिस्ट में 3rd नंबर पे आपका नाम है। और इसके बावजूद वहाँ से जारी हो रहे हैं कि इस्लामाबाद में कोई इनसिक्योरिटी नहीं है, इस्लामाबाद बिल्कुल सेफ है, सिक्योर है, कोई मसला नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका खानम तैयबा साहिबा, आपने हमें वक्त दिया। उम्मीद करते हैं हालात ऐसे होंगे कि आप वापस आ सकें। अफसोसनाक ये सूरत हाल है, कोई भी महफूज नहीं है। हालांकि कहा जा रहा है इस्लामाबाद महफूज है, लेकिन जिस तरह आपने सुना एक मजहबी स्कॉलर खातून को मुल्क छोड़ना पड़ा, इतने ज़्यादा थ्रेट्स थे उनकी ज़िंदगी को। न्यूज़ आवर में मिलते हैं ब्रेक के बाद। के साथ मुज़ाकराती अमल के दौरान खौफ का राज रहा। कराची में थानों के गिर्द खंदकें खोदना पड़ गईं। क्या तहरीक इंसाफ अब भी ऑपरेशन के खिलाफ है?
कराची में बिलावल भुट्टो जरदारी पर खुदकुश हमले का मंसूबा नाकाम बनाया गया है। कराची में 120 किलो बारूदी मवाद से भरी गाड़ी पकड़ी गई। बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस हवाले से ट्वीट किया है कि जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, वो डरने वाले नहीं। हकीकत यह है कि 9 सितंबर 2013 को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस ने तालिबान से मुज़ाकरात का मुतफ़क़ा फैसला किया था, मगर मुज़ाकरात दीवाने का ख्वाब ही बने रहे। एक तरफ हुकूमत मुज़ाकरात के लिए जतन करती रही तो दूसरी तरफ दहशतगर्दी की आग मुसलसल सिक्योरिटी एहलकारों और बेगुनाह शहरियों को जलाती रही। सितंबर 2013 से फरवरी 2014 मेजर जनरल सनाउल्लाह नियाजी की शहादत, चर्च हमला पिशावर में, सरकारी मुलाजमीन की बस पर हमला, नमाज पढ़ते फौजियों की शहादत, बन्नू में फौजी काफिले पर हमले की सूरत, क़यामतों के नुज़ूल की लंबी लिस्ट है। गोया मुज़ाकरात के दौरान खौफ का मुकम्मल राज रहा और अब भी है। कल भी हमने जिक्र किया था, कराची में खौफ के साए गहरे होते जा रहे हैं। थानों के गिर्द खोदी जाने वाली खंदकें, नई तामीर होने वाली हिफाजती चौकियां इसी खौफ की कहानी सुना रही हैं। पुलिस एहलकारों को हिदायत है कि वो सादा कपड़ों में थाने आएं, शनाख्त जाहिर ना करें। ट्रैफिक पुलिस तालिबान की धमकी के बाद बसों से म्यूजिक सिस्टम उतारने की मुहिम शुरू कर चुकी है। साफी अलग परेशान है, किसी चैनल पर दस्ती बम हमले हो रहे हैं और किसी के बाहर से बम नकारा बनाए जा रहे हैं। साफियों को हिदायत हैं कि वो ड्यूटी पर आते हुए दफ्तरी कार्ड न पहने। ऐसे में ये बईद नहीं कि सियासी कारकुनों की होने वाली टारगेट किलिंग भी दहशतगर्दों की कारस्तानी हो। कराची के इलाके MPR कॉलोनी में ANP रहनुमा डॉक्टर इसार की गाड़ी पर भी फायरिंग की गई, जिसमें 5 अफराद की जान चली गई। ऐसी कार्रवाइयों का मकसद सियासी जमातों को आपस में लड़ाकर अपना मकसद पूरा करना भी हो सकता है। सवाल यह है कि इन गिरती लाशों के दरमियान क्या फिर भी मुज़ाकरात होने चाहिए? दहशतगर्दी का हल क्या है? शिद्दत पसंदों की कमर तोड़ना है या फिर मुज़ाकरात के नाम पर यूं ही जनाजों को कंधे देना? इसका जवाब लेंगे कराची में तहरीक के रहनुमा जनाब आरिफ अलवी से। आरिफ अलवी साहब, अभी ताज़ा बयान आया है वज़ीर इत्तलात और नशियात परवेज़ रशीद साहब का। उन्होंने तालिबान से मुखातिब होते हुए कहा है कि एक बार बात करोगे हम 2 बार बात करेंगे, एक बार करोगे तो हम 2 बार करेंगे। आपको लगता है सही पॉलिसी है? मेरा ख्याल ये है कि सबसे पहले तो मैं इस बात पर खुशी का इजहार करूं कि बिलावल भुट्टो साहब के हवाले से जो कोई प्लान था वो पकड़ा गया। बहुत ज़रूरी है कि हमारे सियासी रहनुमाओं को फुल प्रोटेक्शन मिले, और बिलावल भुट्टो साहब के ख़ानदान ने तो बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं, तो पाकिस्तान कोई और कुर्बानी अफोर्ड नहीं कर सकता। बहुत सीरियस इशू है और मुझे कम से कम इस बात की खुशी है कि प्रॉम्प्टली ये मामला रोक लिया गया। दूसरी बात मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जो मुज़ाकरात का और एक्शन का मामला है, इसके अंदर ये जो राइट टू डिफेंड है हमारी फ़ौज के लिए, फ़ौजी अहलकारों के लिए और एजेंसीज़ के जो सारे पुलिस वाले और सब कुछ, तो राइट टू डिफेंड कभी भी नहीं लिया जा सकता। एक जमहूरियत के अंदर प्रोटेक्शन करने वाले तो यही इदारे हैं, और जब ये गले काटे जाएं और जब ये दहशतगर्दी की वाक़यात होती रहें जिसके अंदर ख़ास निशाना हमारे फ़ौजी भाइयों को बनाया जाए, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि राइट टू डिफेंड नहीं लिया जा सकता। हमें इस बात का एहसास था पहले दिन से जब टॉक शुरू हुई। मैं तो बार बार ये कह रहा था कि टॉक्स सैबोटाज भी होंगी, टॉक्स फेल भी होंगी, और यही होगा। बस सिर्फ मैं समझता हूँ कि जब राइट टू डिफेंड हमने नहीं किया, हम वापस नहीं ले सकते, तो सिर्फ हमारी एक इंटेंशन है कि देखिए, जब आप वाकई दहशतगर्दों को मारें तो इस बात का एहतियात स्टेट को तो लेना पड़ेगा कि सिविलियन डेथ्स ना हो या कम से कम हो, ठीक है ना, क्योंकि उसके साथ एक विशस साइकिल शुरू हो जाता है जिसके अंदर अमवात और उसका रिटेलिएशन और कोलैटरल डैमेज बढ़ जाता है। तो लिहाजा एक तो ये, दूसरे ये कि मैं ये समझता हूँ कि ये जो एक्शन स्टॉक्स का जो मामला है ना, स्टॉप गो चलेगा। मेरा ख्याल ये है कि ये रुकेगा फिर चलेगा, ये रुकेगा फिर चलेगा। ये इवेंट नहीं है, ये एक प्रोसेस होगा जिसके अंदर ये मामला चल नहीं सकता कि ये दहशतगर्दी के वाक़यात भी होते रहे और टॉक्स मुज़ाकरात भी होते रहे। हमने परसों नहीं, मैं आपको बता, हमने परसों इसी बात को महसूस करते हुए अनकंडीशनल डिमांड किया था तालिबान से कि इमीडिएट और अनकंडीशनल सीज़ फायर पर आएँ, क्योंकि हमें अंदाज़ा था कि मामला टॉक्स रुक जाएंगी और ख़राब हो जाएंगी इस तरह से। आप फरमा रहे थे कि जो आपकी कोर कमेटी का इजलास हुआ उसमें भी ये फैसला हुआ, लेकिन फायरबंदी तो नहीं हो रही तालिबान की जानिब से। वहां से तो अब जवाब आ गया है कि जो कार्रवाई हुई है अभी फौज की जानिब से, जेट तैयार में बमबारी की है, इसका भी जवाब दिया जाएगा। तो अब तो लगता है मुज़ाकरात नहीं हो सकेंगे। मेरा ख्याल से इस माहौल के अंदर मुज़ाकरात नहीं हो सकते, और किसी का भी इंसिस्ट करना कि नहीं जिसके बावजूद सिर्फ मुज़ाकरात हों, तो मेरे ख्याल से वो हज़म नहीं होगा। अच्छा, मैं दूसरी बात आपसे ये कहना चाह रहा था कि मुज़ाकरात के कुछ नुकसानात
बहुत हुए जो इतने दिन हमने इंतज़ार किया, फ़ौजी जाने गई, हमारे पुलिस वालों की जाने गई, 700 पुलिस वाले KP के अंदर शहीद हो चुके हैं। मगर मैं आपसे कहूं कि मुज़ाकरात में से चंद चीज़ें मिली हैं जो मस्बत हैं। उसके अंदर से क्या चीज़ें मिली हैं? सबसे पहली चीज़ ये कि एक बात तकरीबन तय है, सवाए एक साहब के जिन्होंने इससे इनकार किया, वो ये कि आईन पाकिस्तान के अंदर मुज़ाकरात होंगे। जब आईन पाकिस्तान के अंदर मुज़ाकरात होंगे, जब भी होंगे, मैं समझता हूँ सेटबैक हो चुका है, मगर मैं सिर्फ ये कौम को बताना चाहता हूँ कि कुछ चीज़ें टेक होम इसमें से हैं। आईन पाकिस्तान के अंदर जब मुज़ाकरात होंगे तो सबकी मिसगिविंग्स जो हैं वो कमज़ोर पड़ जाएंगी। ये पहले कभी भी बात नहीं हुई थी। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि इस बात का भी जिक्र हुआ कि मुज़ाकरात होंगे उस इंसाफ के उसूलों के ऊपर जो कॉन्फ्लिक्ट एरियाज़ के अंदर हैं। इसकी वजह से ये भी हुआ, जब ये बात सामने आई तो ये भी हुआ कि कुछ ग्रुप्स ने तालिबान को छोड़ दिया। दूसरी बात। तीसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि चौधरी निसार ने असेंबली के फ्लोर पर भी कहा था कि तालिबान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान सबसे बड़ा ग्रुप है, मगर ये 40% है, 60% दूसरे ग्रुप हैं। मगर हम दूसरे ग्रुप से बात नहीं कर रहे अभी, क्योंकि हम नहीं चाहते कि निफाक पड़े। हुकूमत के पास जब मुज़ाकरात नहीं होंगे तो ये ऑप्शंस अब क्लियर होने लगेंगे कि कौन से ग्रुप्स ऐसे हैं जो मुज़ाकरात करेंगे और बातचीत करेंगे। ये डिस्क्रिमिनेशन पहले नहीं था, और आपने देख लिया कि जब ये बात हुई कि फाटा की डिमांड ज़्यादा थी तो एक ग्रुप अलहदा हो गया, उसने कहा कि जी हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। तो ये डिस्क्रिमिनेशन भी इन मुज़ाकरात की वजह से शुरू हुआ। दूसरी बात मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि 2-3 जमातों ने बड़े स्ट्रॉन्ग बयान दिए जो पहले कभी नहीं देते थे। मैं कोट करूँगा लियाकत बलोच साहब जमात इस्लामी के, जो पहले ऐसे सख्त बयान नहीं देते थे। उन्होंने कहा जी तालिबान अगर ये समझते हैं कि ज़ोर और ज़बरदस्ती के तहत और बंदूक की नाली के तहत इस्लामी निज़ाम आ जाएगा तो ये उनकी गलत फहमी है। आईन पाकिस्तान इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान की अक्कासी करता है और उनको चाहिए कि दहशतगर्दी मासूमों को मारना बंद करें। इसी तरह से मौलाना फजलुर रहमान ने सख्त बयान दिया, इसी तरह से मौलाना समीउल हक ने सख्त बयान दिया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मुज़ाकरात एक इवेंट नहीं है, मुज़ाकरात एक प्रोसेस होगा। सही, यानी ये मामला चलता रहेगा, रुकेगा और चलेगा। आपको लगता है कि अब भी मुज़ाकरात इस तरह से हो सकेंगे? और मुज़ाकरात से कई बातें वाज़े हुई हैं, कुछ मुस्बत पहलू भी इसके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आरिफ अलवी साहब, तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा। अब भी पुरुमीद हैं कि ये कुछ वक्त आया है तातुल का, फिर से मुज़ाकरात हो सकेंगे। मगर वो ये भी कहते हैं कि फ़ौज से हक़ नहीं छीना जा सकता, जब भी उनका नुकसान होगा वो जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं। फिर भी सवाल है कि किस तरह से मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे। न्यूज़ आवर में मिलेंगे ब्रेक के बाद। 23 FC एहलकारों को शहीद करने वाले तालिबान कमांडर खालिद खुरासानी ने मीर अली ऑपरेशन का बदला लेने की धमकी दे दी। कराची शदीद खतरे में है। आज की जेट तैयारों की बमबारी के बाद तालिबान की जानिब से जवाब आया है कि वो जवाबी कार्रवाई करेंगे। उनकी जंग नजरियाती है और बमों से उसे खत्म नहीं किया जा सकता। साथ ही साथ इतलात ये भी हैं कि कराची और लाहौर समेत बड़े शहर जो हैं उनको निशाना बनाया जा सकता है। कराची में पहले से ही खौफ है, जिस तरह कई थानों के इर्द गिर्द, कई पुलिस स्टेशन के इर्द गिर्द खंदकें खोदी जा रही हैं और पहले ही जो म्यूजिक सिस्टम्स हैं वो जो पब्लिक बसेस हैं उनसे उतारे जा रहे हैं। ये माहौल कराची में मौजूद है। लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि आज वज़ीर दाखिला ने भी कहा है कि हालात इतने बुरे नहीं हैं जितने समझे जा रहे हैं। इसके बावजूद तैयारी क्या है? अगर खुदा न खास्ता कोई जवाबी कार्रवाई तालिबान की जानिब से होती है जिस तरह पहले देखा गया है तो तैयारी क्या है? इसी बारे में हम बात करेंगे। दिफाई तज्जिया कर इम्तियाज़ गुल साहब हमारे साथ हैं। इम्तियाज़ गुल साहब, धमकी आ रही है जवाबी कार्रवाई की, सबको महसूस हो रहा है कि अब ये सिलसिला शायद चल निकले। कराची समेत पूरे मुल्क को महफूज बनाने की तैयारी आपको नजर आ रही है? मालूम नहीं जी तैयारियां हैं या नहीं हैं। रियासती इदारे तो मेरा ख्याल है ख़ुद कन्फ्यूजन का शिकार हैं। गुज़िश्ता 10 बरसों में अगर देखें तो अगरचे आर्मी का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, पुलिस के बहुत ज़्यादा लोग मारे गए, लेकिन अगर बहसीत मजमूई देखें तो हमारी जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है जिसमें फ़ौजी और सिविल दोनों इदारे शामिल हैं वो सिर्फ़ अलामात हैं उसका इलाज कर रहे हैं। आज तक इस मर्ज़ की मुनासिब तशख़ीस नहीं कर सके हैं। इस वजह से मैं नहीं समझता कि अगर वाक़अतन तालिबान की तरफ से कोई हमले होते हैं, जवाबी कार्रवाइयाँ होती हैं, तो उसके लिए हमारे रियासती इदारे इस अंदाज में तैयार हो सकेंगे। जहाँ तक मेरा अपना ये ख्याल है कि बुनियादी तौर पे ये तो आवाम पे है कि आया वो
ऐसे अनासिर की पुष्टपनाही करते हैं, ऐसे अनासिर की ढाल बनते हैं जो कि इस मुल्क में आज से 1,500 साल पुराना एक निज़ाम लाना चाहते हैं। क्या लोग बिल्कुल वो निज़ाम चाहते हैं जो कि हमने 4 साल तकरीबन 1995 और 2001 के दरमियान देखा अफ़गानिस्तान में? क्या अवाम की अक्सरियत कुछ ऐसा निज़ाम चाहती है? तो फिर मेरा ख़्याल है जिस कदर मर्ज़ी तैयारियां कर ली जाएं, कुछ हासिल नहीं होगा। तो बुनियादी तौर पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि चूँकि इस मुल्क के अवाम ना तो अफ़गानिस्तान जैसा निज़ाम चाहते हैं जो तालिबान के ज़ेर असर था, ना सोमालिया वाला, ना सूडान वाला, और न ही सऊदी अरेबिया वाला निज़ाम यहाँ पे चाहते हैं। तो लिहाजा जिन लोगों ने इस तालिबान के ईवां पे यहाँ पे इस्लामी निज़ाम या शरीयत की रट लगा रखी है, उन्हें इस बात पे ये सोचना चाहिए कि इस मुल्क के अवाम की अक्सरियत इस किस्म के निज़ाम की हामी नहीं है। लिहाजा अगर कोई जवाबी कार्रवाइयाँ तालिबान करते भी हैं तो वो जवाबी कार्रवाइयाँ ख़ुद इस्लामी निज़ाम के, इस्लाम की रूह के मुनाफी होंगी। जी, आज पाकिस्तान ने एहतजाज किया है अफगानिस्तान से कि 23 FC के जो एहलकार हैं अफगानिस्तान में शहीद किया गया। आपको लगता है अफगानिस्तान को इनके खिलाफ कार्रवाई करेगा, या दूसरे मानों में ये तो नहीं होगा कि उनकी पनाहगाह बन जाएगा अफगानिस्तान जब अगर कोई ऑपरेशन हुआ? तो देखिए, अफ़गानिस्तान की मौजूदा इंतज़ामिया से इस किस्म की कोई तवक्को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मौजूदा इंतज़ामिया भारत और अमेरिका के साथ मिल के एक यकसा मौक़िफ़ रखती है, और वो मौक़िफ़ यह है कि पाकिस्तान के शिमाल मगरबी इलाके यानी और ख़ास तौर पे वज़ीरिस्तान के इलाके अफ़गान और अमरीकी अफवाज पर हमलों के लिए इस्तेमाल होते हैं। और ये लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो कि न सिर्फ पाकिस्तानी हैं बल्कि अरब हैं, उज़्बेक हैं। जैसे आपने सुना भी होगा कि जो एयरफोर्स का हमला हुआ उसमें कई उज़्बेक लोग भी मारे गए हैं। तो मेरा ख़्याल है कि जब तक अफ़गानिस्तान, अमेरिका और भारत की इस तहफ़्फ़ुज़ का किसी तरीके से मदावा नहीं होगा पाकिस्तान की तरफ से, उस वक्त तक अफ़गानिस्तान की कम अज़ कम मौजूदा इंतज़ामिया इस सूरत हाल का कोई नोटिस नहीं लेगी, ना ही कोई जवाबी कार्रवाई करेगी। बॉर्डर की बात हो रही है, सीनियर तज्ज़ियाकार कई ये समझते हैं कि इतना मुश्किल शायद शुमाली वज़ीरिस्तान या ये इलाका ना हो जितना कराची के मज़ाफ़ाती इलाके हैं, वहाँ ज़्यादा मुश्किलात होंगी। वहाँ भी ये दहशतगर्द पहुँच चुके हैं, जिसकी मिसाल ये है कि बिलावल भुट्टो पर आज ही एक बहुत बड़ा हमला, खुदकुश हमला होने जा रहा है, जिसे खुशकिस्मती है कि नाकाम बना दिया गया। तो अगर ये हालात हैं तो आप क्या समझते हैं कि वाकई यहाँ ज़्यादा मुश्किल होगी? ये तो शहरी इलाकों तक फैल चुके हैं। पता नहीं, जहाँ तक बिलावल भुट्टो पे हमले की बात है, मुझे तो नहीं समझ आती कि एक दो रोज़ पहले ही वो अपनी तकरीरों में कह रहे थे कि मैं ख़ुद इनका मुकाबला करूँगा, मैं ख़ुद इनको ललकारूँगा, और फिर आज हमले की बात आ गई। मेरा ख़्याल है ये तो एक पब्लिक रिलेशनिंग कैंपेन चल रही है बिलावल भुट्टो के हक़ में। बड़ी अच्छी बात है, खुल के बात कर रहे हैं, बहादुरी के साथ बात कर रहे हैं। हमारी अब तवक्को ये होगी कि बाकी जो पाकिस्तान के सियासी रहनुमा हैं वो भी ऐसी ही बात करें, कुछ बिलावल भुट्टो ज़रदारी से सीखें। लेकिन मैं इनसे लोगों से दरख्वास्त ये करूँगा कि इस किस्म के कोई ड्रामे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप वाक़तन तहरीक तालिबान पाकिस्तान या किसी भी ग्रुप के ख़िलाफ़ हैं या ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ हैं जो पाकिस्तान को तारीक अंधेरों में धकेलना चाहते हैं, तो आप ईमानदारी से अपना मौक़िफ़ बयान कीजिए, लोगों को उस पर कन्विंस कीजिए, क्योंकि लोगों की अक्सरियत बहरहाल इनके साथ नहीं है। लिहाजा मेरा ख़्याल है कि चाहे कराची हो चाहे वज़ीरिस्तान हो, उसमें अगर तो सरकारी इदारों में, रियासती इदारों में और सियासी क़यादत में दम खम ना हो, उनमें अगर उनका इरादा पक्का ना हो, तो फिर चाहे वज़ीरिस्तान हो चाहे कराची हो, हर जगह पे ऑपरेशन मुश्किल होगा। दुनिया भर में ये हुआ है कि जब भी एक इत्तेफाक राय पैदा हो, जी मेरे पास वक्त कम रह गया, मैंने कहा जब भी दुनिया भर में, आपको लगता है इंटेलिजेंस प्रिसीजन ये स्ट्राइक जो थी कि 40 के करीब दहशतगर्द कहा जा रहा है मारे जा रहे हैं, आपको लगता है इसी तरह से हमले होंगे जेट तैयारों के जरिए, या कोई प्रॉपर ऑपरेशन होगा और फिर ये जंग तवील भी हो सकती है? देखिए, जेट ऑपरेशंस के जरिए बमबारी कोई बहुत अच्छा हल नहीं है। पाकिस्तान के पास किसी न किसी हद तक कोई ना कोई मिसाइल टेक्नोलॉजी ज़रूर मौजूद है। वो मिसाइल टेक्नोलॉजी मेरा ख्याल है कि इस्तेमाल हो सकती है। एरियल बॉम्बिंग उमूमन ज़्यादातर नुकसान करती है आसपास रहने वालों का भी। इसमें बहुत ज़रूरी होगा कि अमेरिका के साथ। इम्तियाज़ गुल साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया,
جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف جیٹ طیاروں کی بمباری سے شاید یہ مسئلہ حل نہ ہو، دیکھتے ہیں کہ کس طرح آئندہ آنے والے دنوں میں حالات تبدیل ہوتے ہیں۔ نیوز آپ دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو نفرت و اولاد کے غم سے محفوظ رکھے۔ اللہ حافظ۔